bit of a brief gap in the sessions that were planned. However, we are again after the session which was conducted on 13th of September. Today, after the World Congress of Accountants is now that formally concluded, we are starting with the, or rather resuming with the sessions. Today, we have with us a very learned speaker, a very learned, constantly appearing nowadays more in the media news channels, and a GST expert at par, CS Swapnil Munot. So just to give a brief background on Swapnil Munot sir. So Swapnil Munot sir is currently a chartered accountant practicing based out in Pune, and he is having his pan-India based practice. His areas of practice are precisely the GST, customs and foreign trade policy. He is the author of a book titled as Handbook of GST for Beginners, also authored two ebooks on e-way bill as well as the GST Amendment Act. Till now, he has a large or vast experience. He has delivered over 300 lectures and seminars on indirect taxes, foreign trade policy across the various professional forums such as BCCI, Bombay Chamber of Commerce and Industry, the Federation of Indian Exports Organization, the Institute, ICAI. He is a faculty for the Indirect Tax Committee, Institute of in the Cost Accountants of India, Ministry of MSME, Government of India in Agra, Confederation of Indian Industries, MCCIA, NASIN, and YESDA. For the departmental authorities also, he has conducted several training sessions. He is instrumental in obtaining the certain circulars and notifications from CBIC through his rigorously made representations from time to time. Swapnil has also got the honor to meet the Honorable Finance Minister and the ex-Honorable Finance Minister for State. He was awarded as the GST icon for his work under GST. He is member of the CGST LNR Committee of Maharashtra Tax Practitioner Association and the Tax Committee. He is also a recognized faculty of GST by ICA. He has, as I mentioned, that recently he has appeared on Z Business, CNBC TV, Sam TV Maharashtra, and has regularly been contributing columns in newspapers and various publications. So we had approached Swapnil today for specifically taking a session on the fake invoices and the recently issues which are cropping up around fake invoices. He happens to have already addressed a large number of lectures in this regard, as well as I have read through a few of his write-ups on this fake invoices. And I thought, since the specific topic about fake invoices, tax evasion, the notices which are currently circulating around that is on the huge go, it would be the most appropriate time to have a learned faculty to guide us on this topic today. So with all the respects to the learned faculty, and without doing a further ado, I would ask the faculty to commence. If anybody has any questions in between, please feel free to put in the chat box. Kindly ensure that your phones are on the, your mics are on the mute zone all the while when you're hearing out. If you have to happen to ask any question to the faculty, with this permission, you may please unmute yourself and ask the question. So without taking a further ado, Swapnil, I hand it over to you for carrying out the proceedings. Thank you so much. Thank you, Omkar. Thank you, WRC Study Group, Chairman Ruturaj sir, and all the committee members for giving me this opportunity to discuss the fake invoicing under GST. I request the participants are very less. I request all of you to let's make this session interactive. क्योंकि इंडिया में एक ही आदमी एक वन साइडेड बोल सकता है. So I request all of you, let us make it interactive. So today our topic is fake invoicing, its impact and way forward. So how many of you have seen the such cases or heard or dealing, or your client is now going through such fake invoicing issues, or they are being summoned? Can you please reply in the chat box? Yes, so Omkar is also Omkar is also dealing with such cases. Yes. What about others? You can reply in chat box, or if your mic is permitting, so you can also discuss. How is your experience till now about fake invoicing?
So Swapnil, I'll first see if anybody else wants to contribute. Else, I would just share my experience. Okay, please. So I think Swapnil, what has happened is that currently there is a very strong narrative that is built around this fake invoicing scenario. That since there are a few people who have been caught with really the huge rackets of this fake invoice, every inconsistent invoice is seen from the lens of a fake invoice is what I strongly feel, and that is why it is leading to a large number of summons being issued, and everybody who is in the chain of that trade, entirely the entire trade, long and short, vendor to customer, gets this hit of the summons. So I think that is the darker side of this proceedings which are happening around the e-invoice, is what my experience has been thus far. Rightly said, Omkar, but more darker side, I will actually appreciate the topic that impact. The fake invoicing impact word is used in the heading. Its impact is very, very serious from the economic perspective. I have seen an entity who are having a turnover in 100 and 500 and 1000 crores. They were genuine taxpayers. They were doing a business properly. Something somewhere, something went wrong. Maybe they are not done anything, but because of the harassments in last 2 3 years of someone's threat, arrest, they have literally closed down their businesses. So impact of the fake invoicing on the economy is very huge. Now we can imagine if one business is shut down, its allied industry, the person who are dependent, the employment, a 500 crore company. Still I can recall the word of the one person who called me from the Gujarat, whom he said me, "साहब मैंने बंद कर दिया business, मैंने stop कर दिया ये सब कुछ, ये झंझट नहीं चाहिए दिमाग को, मैं कैसे समझूंगा कि कौन मुझे क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, उस आदमी ने क्या किया क्या नहीं किया है." So its impact is really very, very serious from the economic perspective. Not just tax evasion, but here the closing of the businesses, stop the employment stoppage, and allied industry also getting impacted. So impact is very huge. Now, when we hear the fake invoicing, I will start my presentation. My presentation visible, Omkar? Omkar, my presentation is visible. Others, can you please reply whether it is visible? Okay. So first thing, when we heard of fake invoicing, the first thing comes to our mind is this slide: arrest. First fear factor when you hear the word fake invoicing. No businessman, no professional want to go from this situation. But again and again, the moment you get a summon, you start getting a feeling that अभी arrest होगा क्या. Even if you do not have feeling, when you appear for a summon, ऑफिसर आपको एक बार तो भी बोल ही देंगे कि सर आपको उठा लेंगे, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे. So it's really a panic situation for a businessman when he get a summon when the matters of a fake invoicing. Now, the only one side of this fake invoicing is being told everywhere in all the press release ki 500 crore fake invoicing is being caught and 5 people are arrested. But other side, no one is telling. Twice I raised this issue on the national team media that fake invoicing is not just what we are looking. Fake invoicing में होता क्या है कि normally the person who is a mastermind, he's never been caught and he has issued invoice to some people, then that person has issued to another person, and somewhere the person who is visible, traceable, compliant, that person is in general I observed he's been harassed. He's been asked summon. He's been asked to produce the records. He's been threatened that we will disclose your ITC. You are required to pay all the ITC. सर्च सीजर होता है, इन्वेस्टिगेशन में टैक्स रिकवरी की जाती है. उस आदमी को कैसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा चोरी कर दिया. बिजनेसमैन ने कभी उसकी जिंदगी में जेल नहीं देखा होता है, बट जीएसटी का फ्रॉड, वो भी इतने बड़े अमाउंट का, और वो भी एक साथ आ जाता है 3 4 साल का. तो अमाउंट इज नॉर्मली 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी, दे विल से 50 करोड़ आपको भरना है.
सो वेरी सीरियस इम्पैक्ट इट हैज ऑन इकोनॉमी। इसके एक ही साइड की स्टोरी बताई जाती है कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं वगैरह। कल्प्रिट नॉर्मली मिलते नहीं है, और जो मिलते हैं उनके साथ हैरेसमेंट होती है। नाउ द वार्निंग, आई थिंक दिस इज ओनली सेशन व्हेयर आई गिव अ वार्निंग. The warning is that here we are not supporting any fake invoicing person. Those who are really doing this activity, we will never support them. The understanding or the purpose behind the session is to understand the provision, how this modus operandi, how this fake invoicing happens, what are the board circular in this regard, instruction in this regard, and any judicial discipline. So while during the discussion, please do not feel that somewhere I am supporting these people. No, not at all. I'm just here to explain the provision and just the side of the fake invoicing who are really victim and they are really doing a tax compliance. So somewhere we'll be while explaining, do not have any kind of feeling that we are here to support such people. No, not at all. Now, just to begin my discussion, I would like to ask you a question. Please reply. How big this fake invoice amount is? What do you feel? How big this fake invoicing amount is? Just please reply in the chat box. If we take in pan India basis, how big this amount will be? Just have a guess. हम हर रोज सुनते ही है न्यूज में, व्हाट्सएप पे 50 करोड़ का फेक इनवॉइसिंग मिला, 2 लोगों को अरेस्ट हुई. सो एक अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कितना बड़ा है फेक इनवॉइसिंग का अमाउंट जो डिटेक्ट हुआ होगा. what would be that amount, डिटेक्टेड अमाउंट? प्लीज कुछ भी गेस कर लो, आप बताओ आपका व्हाट यू फील. 6,000 करोड़. ओके, Zulfikar ji is saying 6,000 crore. Okay, what else? A detected amount I'm discussing here. So और कुछ दूसरा केस बहुत छोटी अमाउंट है, इससे ज्यादा अमाउंट डिटेक्ट हुई है. ऑफिशियल फिगर एज पर द गवर्नमेंट. यस, व्हाट अबाउट अदर्स? कुछ भी गेस कर लो प्लीज. लेट अस मेक इंटरैक्टिव थोड़ा सा. व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज़ ये अमाउंट उतनी बड़ी है, इसको पूरी इग्नोर किया जा रहा है फ्रॉम एवरीवन पर्सपेक्टिव. सिर्फ मीडिया में न्यूज आती है, व्हाट्सएप पे न्यूज आती है, फेक इनवॉइसिंग और अरेस्ट, फेक इनवॉइसिंग और अरेस्ट. बट ये कितना बड़ा गोलमाल है ये कोई देख नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज इट इज स्कैटर्ड. यस, कुछ बड़ी अमाउंट कोई तो भी गेस करो, इससे एटलीस्ट बड़ी होनी चाहिए. ये बहुत छोटी अमाउंट है, 6,000 करोड़. शायद इस साल की महाराष्ट्र की, शायद महाराष्ट्र में से हुई अमाउंट होगी शायद इस साल की लगभग. यस, व्हाट एल्स? No, this amount is very huge, around 2 lakh crore since inception of GST. A detected amount, a fake invoicing amount detected by the government. 2 lakh crore. Purposefully मैंने इमेज दिखाई आप सब लोगों को यहाँ पे. 10 साल पहले शायद ये न्यूज में बहुत बड़ा इशू था, 2G 3G स्कैम, कोयला वगैरह. But that amount is also less than the GST fake invoicing scam. Here I have mentioned the amounts. July 7 to March 20, the amount is 1,19,000 crore. 2020-21 में लगभग 35,000 crore and 21-22 में 54,000 crore. And this amount is detection of fake invoicing cases by the state authorities, sorry, central authority. स्टेट अथॉरिटी का अभी तक पूरे इंडिया में पैन इंडिया डेटा इकट्ठा नहीं किया गया किसी की तरफ से भी, बट अगर वो भी जोड़ लेंगे तो मेरे हिसाब से 2.5 लाख 3 लाख करोड़ के आसपास हो गया अमाउंट. सच अ बिग अमाउंट इज देयर. Here when the authority will look, they will just look at an angle of an tax evasion, but there is a serious problem of an from economic perspective. जो लोग इसके विक्टिम नहीं होते उसमें वो विक्टिम बन जाते हैं और बिजनेस ठप जाता है. Around more than 1,000 people have been arrested in fake invoicing cases, including professionals. So huge repercussion. मेरे हिसाब से कोई भी आज की तारीख में इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ होगा इंडिया में जिसमें 1,000 के आसपास अरेस्ट हुई होगी. Just because fake invoicing scattered है, वो हाईलाइट नहीं हो रहा है. Otherwise, this amount is very huge. Now, what are the steps taken by the government to curb the fake invoicing? See, friends,
जीएसटी में जितने भी आज के तारीख में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ऑल द कॉम्प्लिकेशन, द इंपॉर्टेंट रीजन इज बिहाइंड दिस फेक इनवॉइसिंग. Really, we need to professionally we need to stop it. Those who are really doing it, they should stop it, because of fake invoicing, the GST law is becoming stricter day by day. Every day, every other GST council meeting, we will see some surprise provision which will restrict our ITC. Why this is happening? The important reason behind this is fake invoicing. Government is also shocked when they are hearing these figures. As many of you heard the fake invoicing case related to insurance companies, around 1,000 crores, 960 crores fake invoicing is detected by, I think, DGI in the insurance sector. I think last month only, October month only. So government is also shocked with this figure, very, very big amount. Therefore, GST is becoming a complex after every other council meeting. So what are the steps taken to curb the fake invoicing? One is the e-invoicing, blocking of ITC. Now GST had to be driven ITC. Subsequent return cannot be filed unless previous returns are filed. Aadhaar authentication for GST registration. Penalty increased to 20% for the e-way bill. All these are results because of the fake invoicing. I don't know who guide this really mastermind, but we really need to stop it. अगर आपके पास से गलती से भी कोई आता है ऐसा आदमी, ने उसका केस करना मत, क्योंकि वो तो कल जाके मिलेगा नहीं, बट आपका आईपी एड्रेस गवर्नमेंट को मिल जाएगा और आपके अगेंस्ट फिर सब अथॉरिटी लग जाएगी. See, last week only I encountered one case. A person is from Bombay only. He is a Swiggy delivery boy. स्विगी डिलीवरी बॉय है, उसके पास ज्यादा आमदनी भी नहीं है, इसका इनकम भी ज्यादा नहीं है, और उसके नाम पे लगभग 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस चल रहा है. वन इन जयपुर, अनदर इन नागपुर, एंड ही वाज नॉट अवेयर. उसको समन आया तब सब समझ में आया कैसा कुछ हो रहा है. नाउ डिपार्टमेंट इज चेकिंग कि हाउ ये कैसे हुआ. सो वन पॉसिबिलिटी इज बीन thought is that he has taken the loans. So for the loan he has submitted the documents, और जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते तो वहां से वो उसको फोर्जरी करके उसका रजिस्ट्रेशन दिया गया, एंड फिर वो बिजनेस रन हो रहा है. एंड दैट दिस पर्सन इज डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ इट. 2-3 days before only I had a chance to have a session for the GST commissioners. So while discussing with them, I asked that whether this Aadhaar authentication is also very, whether it is stopping all this fake registration. So one of the officers said, no, Swapnil, still there is a loophole. Still people can manipulate this. So now they are insisting for fake registration. Now they are thinking to go for a physical visit for the registration. So friends, at one side when we see that, when we discuss that GST registration में बहुत सारी queries आती है, फलाना क्वेरी आती है. पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल था, तो ये भी हमें समझना जरूरी कि कितने सारे फेक इनवॉइसिंग हो रहे. लगभग 20,000 जीएसटी बोगस है गवर्नमेंट के हिसाब से. तो समवेयर सम प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट, दिस पीपल आर supporting such people to form the entities, series of entities, basket of entities, and thereby they are creating this fake invoicing scam. So हम जब एक स्टोरी बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, तो हमें दूसरा स्टोरी भी समझना जरूरी कि जरूरत है गवर्नमेंट को आधार ऑब्लिगेशन और थोड़ा स्ट्रिक्टली किया जाए रजिस्ट्रेशन को. और इस रिवर में और जीएसटी की रिवर में और फेक इनवॉइस, फेक जीएसटी नहीं आ पाए इसलिए. So in coming days, if there is a compulsory physical visit which was there in the excise era की physical visit के बिना हम आपका registration accept ही नहीं होगा, उसका एक report बनेगा और फिर registration होगा. So you should not be surprised for that. And I feel it may happen in coming days कि physical visit हो सकती है registration के लिए. Now the impact of the fake invoicing, as we discussed, the first is arrest threat. We are discussing from the honest taxpayer perspective. So एक तो उसको अरेस्ट का हमेशा थ्रेट है. डिफेमेशन, नाम बदनामी हो जाती है. जैसे ही रेड हो जाती है, जैसे ही फेक इन्वेस्टमेंट में नाम आ जाता है, मार्केट में नाम हो जाता है कि ये इसको उठा लिया, इसको पकड़ लिया, इससे माल मत खरीदो, इससे माल मत खरीदो, इसको माल बेचो मत, इसके बैंक अकाउंट अटैच्ड हो गए हैं. सो पूरा एक रेपुटेशन जो होता है बिजनेसमैन का, पूरा खत्म सा हो जाता है मार्केट में.
फाइनेंशियल स्टेज बढ़ जाता है, लोन, आई हैव सीन वन एंटिटी रिसेंटली अराउंड 1500 करोड़ पूरा बंद है आज की तारीख में। सी इसका इम्पैक्ट बैंकिंग पे भी हो जाता है, बैंक के लोन स्टॉप हो जाते हैं, लोन रिपेमेंट, अगेन एनपीए। So very huge impact fake investing having, and unfortunately it is not been looked at seriously from other side also. Complete stoppage of business, so very huge impact. Now which are the provision which are going to discuss? Section 16 to B, section 16 to C, 69, 83, 122 and 132. Now when GST was introduced when model GST was introduced in 2016, there is a condition that you can take the credit only after receipt of goods or services. In 2017, we have seen that government insisted for GSTR 123, 1A, 2A, all these forms. And then there was a suggestion to the government from various authorities, bodies, that you should not have this condition of receipt of goods or services for taking the credit, which I also supported in 2017. कि क्यों चाहिए condition हमें goods credit लेने के लिए, goods और services मिले ही होने चाहिए. But now I feel this condition is very important. Many people, they just trade in the goods, trade in the invoices, but they don't receive the goods. How government will penalize such people? There should be some condition that you can take the credit only if you have received the goods or services. Therefore, section 16(2)(b) becomes very important. Now 16(2)(c), we are aware, tax paid by condition by supplier is a very important condition. Now, under section 69, government has a power to arrest the person when you have reason to believe that the government needs to investigate this issue. There is a reason to believe that the offense as per section 122 and 130 has happened, so they can arrest that person. Attachment, bank attachment, it is not new to us. बैंक अटैचमेंट की धमकी तो आए दिन दी जाती है टैक्स पेयर को. 2 दिन पहले ही हमारे क्लाइंट के केस में शायद 23 या 24 नवंबर की तारीख होगी, नहीं मेरे हिसाब से दिवाली के 1-2 दिन पहले बात की, और ऑफिसर बोला आपने रिटर्न नहीं भरा, हम आपको बैंक अटैच करेंगे. सो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते वो. बैंक अटैचमेंट इज अ वेरी ड्रैकोलियन मेजर्स. ऑफिसर कैन नॉट जस्ट थ्रेटन टू इन्वोक दिस प्रोविजन, बैंक अटैचमेंट. अगर आपके कोई भी क्लाइंट के केस में कभी भी बैंक अटैचमेंट की धमकी आती है फॉर जस्ट स्मॉल थिंग, you immediately reply, sir, you cannot do that. Law is not permitting you. The bank attachment only need to be invoked only when you need to protect the revenue. You have reason to believe that this action is important. There are the High Court judgment also, which we'll discuss in our coming slide. I hope you are getting interest. Please respond at least yes or no. नहीं आ रहा तो भी yes बोल दो यार. Yes, friends. My speed is okay. So Anil ji is saying yes, okay. What about others, please? So we'll be discussing the issues and some court judgment also in coming slides. Yes. Now, very important. This judgment is very important. I am purposefully sharing this. Bail is a rule, jail is exception. So tomorrow or after today evening, any of your client is getting this threaten कि हम आपको arrest कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी. It's a golden rule. Bail is a rule, jail is exception. Jail is to be jail. The power of to arrest should be exercised in only very rare circumstances. इसको आए ऐसे उठा लिया ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं. दिस इज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आप बोलोगे सर ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सारे हो गए, जरूर है, बट दिस जजमेंट हैज वेरी प्रिसाइज इंपॉर्टेंस व्हिच विल डिस्कस. सो व्हाट इज दिस जजमेंट? जजमेंट इज वेरी रिसेंट. दिस जजमेंट इज रिफर्ड बाय द सीबीआईसी आल्सो. गवर्नमेंट ने भी जजमेंट को रेफर किया है उनके ऑफिसर को बताने के लिए कि आप लोग आपके पावर का गलत इस्तेमाल मत करिए. What is this judgment? The judgment says just a second.
So, Supreme Court in case of Siddharth versus State of Uttar Pradesh in 2021 has given very important judgment that about personal liberty, Article 21 of our Constitution, which is very important aspect. I will just read important line of the judgment. The occasion to arrest of an accused during investigation arises when the custodial investigation become necessary. जब बहुत जरूरत होती है या there is a heinous crime. Merely because arrest can be made because it is lawful does not mandate that arrest must be made. A very important line. आपके कोई भी क्लाइंट को अगर कोई भी थ्रेटन आता है, कोई धमकी आती है कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, you just in your submission you just the court this decision. Just merely because an arrest can be made because it is lawful does not mandate that arrest must be made. मतलब क्या कि आप अरेस्ट कर सकते हो लॉ के हिसाब से, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको अरेस्ट करना ही है. Distinction must be made between the power, existence of a power to arrest and justification for exercise of it. Distinction आपको करना जरूरी है, existence of a power और आप उसको क्यों यूज कर रहे हैं. If arrest is made routine, it can cause and harm to the reputation and self-esteem of a person. Very important guidance given by this judgment to the authorities कि आपको अरेस्ट कब करना है, या अरेस्ट की पावर इसलिए अरेस्ट करना ही है क्या. सो दिस जजमेंट सेइंग आपको अरेस्ट की पावर इसलिए अरेस्ट करना जरूरी नहीं है. देयर मस्ट बी सम रीजन टू बिलीव, जस्टिफिकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ इट. एंड फ्रेंड्स, दिस डिसीजन इज बीइंग referred by the CBIC in its recent decision recent instruction also. CBIC has given instruction to the field officers on matter concerning related to arrest, where it is mentioned कि आप अरेस्ट ऐसे ही मत करो just because आपके पास पावर आ जा रही है सेक्शन 122 132 के हिसाब से, जो हम डिस्कस करेंगे. just because ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस उस अमाउंट में है, उस अमाउंट में लिमिट में ऑफेंस है और आप अरेस्ट कर सकते हो, इसलिए अरेस्ट मत करिए. आप ये चेक करिए कि क्या ये अरेस्ट करना जरूरी है. So now let us discuss section 122, very important from the fake invoicing perspective. So 122 and 132 talks about fake invoicing related penalties and punishments. So यहाँ पे बता, अच्छा मुझे पूछना था whether fake invoicing is defined in GST. What is the definition of fake invoicing? Yes. Whether fake invoicing is defined anywhere in GST? Has anyone read the definition of fake invoicing? So Janki ji is saying no. Anil ji is saying no. Right. So fake invoicing is nowhere defined in GST. क्या इसका मीनिंग क्या होता है? So इसका मीनिंग हमें मिलता है जो हमें सबको मालूम ही है, बट सेक्शन 122 में थोड़ा डिफाइन किया हुआ है इसके ऊपर कि जब भी गुड्स दिए जाते हैं बिना इनवॉइस के, जब भी गुड्स सप्लाई होंगे, गुड्स या सर्विसेज बिना इनवॉइस के, या फिर सिर्फ इनवॉइस दिया जाएगा बिना गुड्स और सर्विस का, या फ्रॉडुलेंट आईटीसी हो सकता है. सो ऐसे केसेस को हम फेक इनवॉइसिंग में पकड़ेंगे. इसके साथ ही अगर रिफंड लिया गया है, इफ अ रिफंड इज बीन टेकन फ्रॉडुलेंटली, false information is furnished in registration, transport and taxable goods without any cover of documents, all these cases will attract the penalty, and penalty is equal to the 10,000 rupees or amount of tax evaded or ITC availed, distributed irregularly. So 100% penalty. Sometimes it may happen that a person is being penalized under this section twice, for receipt of fake goods, for receipt of fake invoices, receipt of fake invoice and for issue of fake invoice. कुछ लोग जो इसमें रियली फेक होते हैं, वो लोग दोनों काम करते हैं, फेक लेते भी है, फेक देते भी है, तो उनको डबल पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है. 100% मतलब 200% पेनल्टी. So this is just about penalty. अच्छा, whether government has the power to arrest the person who is a part or who is assisting, consulting this fake invoicing, under whether GST Act has any such power to the government. What do you feel?
क्योंकि कोई ना कोई तो इनके एडवाइजर तो होना ही चाहिए, नहीं लोग होता ही होगा जो इनको गाइड करता होगा कैसे करना है क्या करना है, अदर देन द पर्सन इज एक्चुअली डूइंग दिस. So whether there is any provision under GST to penalize such people? Yes. So this 1A specifically introduced for all such people who abet, aid, assist, take the benefit from such transactions. So 1A talks about any person who retain the benefit. Normally ऐसे केसेस में commissions वगैरह मिलते हैं लोगों को, and at whose instance such transaction is conducted, he shall be liable for penalty equal to the tax evaded penalty, tax evaded or input tax availed or irregularly passed on. So इन लोगों को भी के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए पर्पसफुली सेक्शन 122 1A इंसर्ट किया गया है. इसमें अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो भी शायद इंक्लूड हो सकता है. नाउ समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि सर मैंने तो कोई फेक इनवॉइस से मेरा दूर दूर तक संबंध नहीं है, और ऐसे केसेस आपके पास भी आए होंगे कि हमारे क्लाइंट को सडनली नोटिस आ गया, समन आ गया, हमारा कोई दूर दूर तक संबंध भी नहीं है, क्या हमने अटेंड करना चाहिए? यस, समन नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड, इट्स अ जुडिशियल प्रोसीजर. What if you don't attend a summon? Authority has an power कि आपके ऊपर 25,000 की पेनल्टी लगा सकते हैं कि आपने समन को इग्नोर किया. So whenever you receive the summon, you please respect it. आपको जिस दिन जिस समय पे बुला गया आप जाइए, अगर नहीं जा पा रहे तो आप कम्युनिकेट कीजिए कि दूसरे तारीख को बुलाया जाए, बट समन को इग्नोर ना करें. बहुत बार मैं देखता हूँ कि समन को लोग इग्नोर करते हैं. There is a judgment आई थिंक बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट था शायद, वो टैक्स पेयर गया कोर्ट में कि सर मुझे बहुत बार समन आ रहा है, परेशान किया जा रहा है, बट ही वाज नॉट अटेंडिंग दैट समन. सो दैट ही सेड, हाईकोर्ट सेड कि आप अटेंड करिए ना और फिर हमारे पास आइए. यू कैन नॉट जस्ट से दैट कि आई हैव बीन हरास्ड. नो, यू शुड अटेंड द समन, you should go through that procedure. No punishment. This is about the arrest, imprisonment. So 122 में पेनल्टी लगाई जा सकती है, 132 में आपको जेल में डाल सकते हैं. कब, वो डिस्कस करते हैं हम अभी. 132. So whosoever commit, और मैंने यहाँ पे रेड मार्क में स्टार किया हुआ है, और causes to commit and retain the benefit arising of the following transaction. मतलब ऐसा कोई भी आदमी जो नीचे दिए गए चीजें करता है या उस चीजों को असिस्ट करता है कमिट करने के लिए, तो इन लोगों के ऊपर हम इनको जेल में डाल सकते हैं. सो इश्यू ऑफ सप्लाई गुड्स विदाउट एनी इनवॉइस विद एन इंटेंट टू evade the tax. See here, the government is talking about the intention, mens rea. So when it comes to arrest provision, there should be a fraudulent intention. गलती से वहां नहीं होना चाहिए, the fraudulent intention to evade the tax होना चाहिए. Very important parameter to invoke the section 132. Issue the invoice without supply. Fraudulently evade the same parameter, abet any of the offences. In such cases, there is an imprisonment. Now, what is a term for the imprisonment? So, government has said कि अगर 5 करोड़ तक का फेक इनवॉइसिंग का जो टैक्स इवेजन का अमाउंट होगा 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो लगभग 5 साल तक आपको जेल हो सकती है. आपको मतलब जो भी पर्सन इसमें, अगर टैक्स इवेडेड की अमाउंट 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 3 साल तक, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो 1 साल तक, और 1 करोड़ से नीचे है तो 6 महीने तक. ये आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, ये लिमिट्स. नाउ ये जो सभी ऑफेंसेस दिए हुए यहाँ पे, एक्सेप्ट अमाउंट एक्सीडिंग 5 करोड़, बाकी सब बेलेबल है. आपको बेल मिल सकती है जो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है गलती से या जो भी पर्पसफुली, उनको बेल का ऑप्शन है. सो नॉर्मली इट इज ऑब्जर्व दैट डिपार्टमेंट अरेस्ट के बारे में कब सोचता है, एक तो मास्टरमाइंड होगा या फिर 5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट होगी, तभी डिपार्टमेंट अरेस्ट के केस में नॉर्मल एक्शन लेते हैं. नॉर्मली उसके अगर अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है
और वो आदमी मास्टरमाइंड नहीं, तो अरेस्ट के बारे में डिपार्टमेंट इमीडिएटली एक्शन नहीं लेते हैं, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ व्हिच आई ऑब्जर्व। आई होप यू ऑब्जर्व दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक दिस सेशन लिटिल, ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग। प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, any question? I hope you are able to understand all such things. Friends, please reply. ये जो ऑनलाइन होता है यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप सब लोग हो मेरे साथ या व्हाट्सएप पे हो? ओके, थैंक यू जुल्फिकार जी, जानकी जी फॉर रिप्लाई। यस, सी ऑनलाइन सेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक, उसमें मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। समझ में नहीं आता है मैं जो बताना चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, whether you are to understand or not. Yes, श्वेता जी, थैंक यू। यस, सो अगर आपको क्वेश्चन होता है तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछिए। ये फेक इनवॉइसिंग के ऊपर ज्यादा ठीक से डिस्कशन होता नहीं है, कहाँ पे क्या प्रोविजन है वो बताया नहीं जाता है, इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से सर्कुलर से उसका डिस्कशन होता है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स। 3-4 केसेस आई एम डीलिंग, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये लोग बेचारे, इनकी कोई गलती नहीं और यार जिसके बड़े बड़े विक्टिम हैं और बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे इनके ऊपर नोटिस आ रहे हैं। यस, सो रिमेंबर दिस 5 करोड़ लिमिट, 5 करोड़ के ऊपर होता है तो ही मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अरेस्ट की चांसेस होते हैं, बिकॉज 5 करोड़ के नीचे अवेलेबल होता है ना। ये क्वेश्चन है कि 5 करोड़ मतलब 1 साल का या सब साल मिला के, how to measure this? And sometimes if I have made some deposit, I have accepted the amount, let's say government ने मेरे ऊपर रेट डाली और उन्होंने 6 करोड़ का फेक इनवॉइसिंग का मुझे बता दिया आपकी तरफ से हुआ है, और मैंने 2 करोड़ भर दिए, तो 4 करोड़ की अमाउंट बचती है अभी मेरी। So whether I will still fall in the 5 crore limit? I hope you got my question. So yes, so many times it is observed that taxpayer feels कि मैं 5 करोड़ के नीचे आ जाता हूँ तो मुझे अरेस्ट के नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और ये जो अमाउंट है ये मेरे हिसाब से दोनों तीनों साल मिला के होगी, मतलब जितने भी साल कंसिडर करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 1 साल की अमाउंट आती है 2 करोड़, 4 साल की पकड़ेंगे तो 6-7 करोड़ हो जाती है। So if the total amount which government has observed, the tax levied amount is increasing 5 crore, they have a power to arrest, and that arrest वहां पे आपको बेल का ऑप्शन नहीं होता है। बट जस्ट बिकॉज मेरी 5 करोड़ से ज्यादा ही अमाउंट हुआ है जो फेक इनवॉइसिंग में आया है मेरा नाम, और since I am fulfilling the condition of section 132, officer will arrest me? No. Again, that decision which we discussed of the Supreme Court, power must be exercised very carefully. Power to arrest और ये बैंक अटैचमेंट रिलेटेड जो अटैचमेंट प्रोविजन वी ऑल अवेयर। हाँ, मैं इस इंस्ट्रक्शन पे आता हूँ। Now this instruction very important instruction when it comes to arrest matter। अगर आपके पास कोई केसेस है तो इस इंस्ट्रक्शन का प्रिंट आउट निकाल देना, और ऑफिसर आता है तो उसमें हाईलाइट करके उसको बताना सर आप नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। पहली बात, the power to arrest must be exercised very carefully. It should not be made as a routine and mechanical manner. Just because all the legal conditions are satisfied for invoking the arrest provision, it does not mandate that you should make the arrest. There should be guilt mind. There should be intent to evade the tax. I will give an example. I'm repeating, I'm not supporting these people. Have you seen the people who increased, have you heard the people who increased their turnover for meeting some criteria? The intention is to increase the turnover for meeting some other criteria. You must have heard such cases, such people, right? Yes. टर्नओवर बढ़ा देते हैं कुछ रीजन के लिए, जीएसटी अवॉइड करना उनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता, कुछ अलग इंटेंशन होगा जो गलत ही होगा, बट टैक्स इवेजन करना इंटेंशन नहीं होता है।
टर्नओवर बढ़ाना इंटेंशन होता है. सो यहाँ पे मेंस दिया गिल्ट माइंड, प्रेजेंस ऑफ गिल्ट माइंड, दैट ये जानबूझ के किया जा रहा टैक्स इवेड करना, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे केसेस में अरेस्ट नहीं होनी चाहिए एज पर दिस इंस्ट्रक्शन. I hope you understood this example. Yes. Now, before invoking this arrest power, officer should answer the following question: whether arrest is necessary. अगर अरेस्ट नहीं किया तो क्या whether it is likely to temper the evidences, whether person is mastermind, और उसको अरेस्ट नहीं किया तो उसका प्रेजेंस नहीं होगा, he will not appear before authority. अगर ये क्वेश्चन का आंसर अफर्मेटिव है तो ही अरेस्ट करनी चाहिए. Then only the officer should proceed for the arrest. This is as per the instruction. Very important, this question which officer need to answer. He need to freeze his opinion about this question, and if these are affirmative, then only he should proceed for the arrest, irrespective of the amount. So Jyoti is asking question, sir. Let's say we say client have an invoice delivery note. Let's say client have an invoice delivery note not kept on record of amount received through bank, also received and confirmed received. So Zulfikar ji, you are saying that you have some records, you don't have some records, but the transaction routed through bank account. Client is unable to prove then fake invoice impact shall follow. See, I will discuss such kind of cases कि हम किस तरह से हमारा सबमिशन में कर सकते हैं कि हम इस फेक इनवॉइसिंग में नहीं है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है. सी है किसी के पास डिलीवरी नोट होगी नहीं होगी ये तो होने वाला ही है, बट डजंट मीन कि मैंने फेक इनवॉइसिंग किया है. जस्ट बिकॉज आपको मेरा सप्लायर फेक इनवॉइसिंग में मिला है या फिर जस्ट बिकॉज मेरा कस्टमर आपको फेक इनवॉइसिंग में मिला है, डजंट मीन मैंने फेक इनवॉइसिंग किया है. तो आपके पास जितने भी रिकॉर्ड आप उनको दे सकते हो, और ये बुक्स में रिकॉर्डेड है, कुछ कोर्ट्स के जजमेंट है, कुछ सैंपल कॉपी आप उनको दो और आप स्ट्रिक्टली डिनाई कर दो कि आई हैव रियली मेड अ सप्लाई टू देम एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आई हैव बीन इन्वॉल्वड इनटू फेक इनवॉइसिंग. सी अरेस्ट may not be, लास्ट बुलेट पॉइंट आप इस स्लाइड का देखना, अरेस्ट may not be resorted in case जब आप समन का कंप्लायंस कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, आप कुछ ऐसे गलत आंसर नहीं दे रहे हो और वॉलंटरीली अगर आपने टैक्स पेमेंट किया है तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर अरेस्ट की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए. दिस इज एज पर द इंस्ट्रक्शन नंबर 2 व्हिच इज ऑफ द अगस्त 2022, irrespective of the amount. So very important instruction been issued by the CBIC. ये इंस्ट्रक्शन क्यों इशू किया गया? क्योंकि ऑल टैक्स ऑल बिजनेस एसोसिएशन दे कंप्लेन टू द गवर्नमेंट कि हमें आए दिन अरेस्ट की धमकी आ रही है. हमें मालूम भी नहीं हमारे सप्लायर ने क्या किया गया, बट हमें नोटिस आती है ये बड़ी अमाउंट है, ये समन है, आप अगर नहीं करोगे तो हम आपको अरेस्ट कर देंगे. So because of that, you understand the other side of the issue also, and they issue this important instruction. See, एक जनरल जस्ट एक हम 132 और 122 हमने डिस्कस किया, तो उसके बीच में एक सेक्शन है 126. many professionals are not aware about it, but आपके तरफ से कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है जिसका कोई टैक्स इवेजन करना इंटेंशन नहीं होता, सॉरी, बट आपको थ्रेटन किया जाएगा, नहीं आपने गलत कर दिया ऑफिसर की तरफ से, तो उसे माइनर ब्रीचेस के लिए पेनल्टी नहीं लगा सकते. ये 126 सेक्शन बोलता है. फेक इनवॉइस से कोई संबंध नहीं है, बट जस्ट एक सेक्शन था तो मैं बोला चलो डिस्कस कर लेते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि फेक इनवॉइसिंग कैसे होता है या क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं फेक इनवॉइसिंग के लिए. सी एक केस जो पहला हम बोल सकते हैं कि मेरा पूरा परचेस रिकॉर्डेड होता है, पूरा रिकॉर्डेड B2B होता है, मैं मैन्युफैक्चरर से लेता हूँ,
और मेरा जो सेल होता है वो भी B2B होता है और B2C होता है। और B2C होगा तो कभी कभी कैश में हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन बॉम्बे यू हैव अ मार्केट जहाँ पे हम जाके ले सकते हैं, आई थिंक जहाँ पे हाउस होल्ड चीजें सब चीजें मिलता है, आई थिंक क्रॉफर्ड मार्केट, आई थिंक, राइट? सो अज्यूमिंग मैं बॉटल मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरा सब रॉ मटेरियल जो आता है पूरा रिकॉर्डेड है। So my purchase is recorded, everything is on the record. But there are some shops, there are some trader which want to buy from me. But वो बोलते सर हम आपको कैश में हम आपसे बाय करेंगे। और because of the business opportunity, many times people are induced to adopt this approach और उनको बेच देंगे कैश में। अभी मेरा परचेस तो रिकॉर्डेड है, बट ये सेल मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो बुक्स में तालमेल नहीं बैठेगा। बट such people found out the people some people who are ready to buy the invoices. So वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप एक काम करें, आप हमें इनवॉइस दीजिए, ये बॉटल सप्लाई किया हुआ, और हम आपको कैश वापस दे देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, बिकॉज ऑफ B2C सेल कैश इज बीन जनरेटेड, और उस कैश को वापस निकालने के लिए या उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड पे लाने के लिए फेक इनवॉइसिंग का तरीका अपनाया जाता है। Second, and which this industry has a problem, which really need to be solved and not just looked from the fake invoicing perspective, scrap का। कि जब scrap आपके मेरे घर से जब निकलता है तो ये अनरिकॉर्डेड होता है। मान लो अराउंड 130 पूरे लोगों के घर से स्क्रैप निकलता है रोज, थोड़ा बहुत मेटल का, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक का, पेपर का, और एक जगह कहीं पे जहाँ पे तो भी इकट्ठा हो जाता है और फिर उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। उस स्टेज तक वो स्क्रैप पूरा अनरिकॉर्डेड होता है। ये इंडस्ट्री का बड़ा पेकुलर प्रॉब्लम है, स्क्रैप इंडस्ट्री का। और वो लोग फिर जब उसको प्रोसेस करते हैं और वो बिजनेस को बेचते हैं उनका प्रोसेस्ड फिनिश गुड्स, बट उनका रॉ मटेरियल पूरा का पूरा अनरिकॉर्डेड होता है। सो दे टेंड टू अडॉप्ट सच में थिंग ऑफ फेक इनवॉइसिंग। इसके ऊपर एक खुली बेस होनी जरूरी है, इस चीजों को सॉल्व करना जरूरी। इनकम टैक्स, फेमा, ईडी, सॉरी PML एक्ट के अंदर सब जो भी जहाँ पे भी इस चीजों को एक ऑफेंस बताया गया, पनिशमेंट बताया गया, बट वो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन लाया जाए। जैसे कुछ स्क्रैप वाले बोलते हैं सर इसके ऊपर RCM लाया जाए, हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर GST भरे, बट आप एक्सेप्ट करो कि हमारे पास अनरिकॉर्डेड मटेरियल आया है। आई डोंट नो अबाउट इनकम टैक्स, बट इस सब चीजों के ऊपर एक खुली चर्चा होकर इसके सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, अदरवाइज दिस पीपल विल फाउंड आउट द वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग इट। मैंने एक एंटिटी देखी थी जब मैं फेक इनवॉइसिंग का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ये कैसे इन्वेस्टिगेट करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम CID वगैरह देखते हैं तो उस तरीके से हर एक डॉक्यूमेंट माइन्यूटली पढ़ना है, हर एक चीज माइन्यूटली देखनी है, हर एक बिजनेस प्रोसेस को ठीक से समझना है। मैंने एक सप्लायर के केस में, जब हमने जो सप्लायर का नाम आया था हमारे क्लाइंट के, उसकी वजह से हमारे क्लाइंट के ऊपर कुछ कार्रवाई होने के चांसेस हो रहे थे, तो सप्लायर के डॉक्यूमेंट निकाले हमने चीजें चेक करके, तो समझ में आया कि वो सप्लायर जिस नाम से मार्केट में फेमस है और इतने सालों से बिजनेस कर रहा है, उसके जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है उसमें उसका नाम ही नहीं है, उस एंटिटी में उसका नाम ही नहीं है, बट वो बिजनेस वो चला रहा था। तो ये लोग अपना रास्ता बराबर निकाल लेते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड इसका एक लेजिटिमेट सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, कंसीडरिंग ऑल द एक्ट्स। बाद में और लोग ये तो एकदम गलती है, बैंक के लिए लोग टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए दे गो फॉर इंक्रीजिंग द टर्नओवर। सो टू मीट द बैंक लोन क्राइटेरिया टू इंक्रीज द टर्नओवर, वो उनका फेक इनवॉइसिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं। कभी कभी टेंडर की कंडीशन होती है कि आपके पास आपने ये काम किया
आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे कामों का, तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग फेक इनवॉइसिंग अडॉप्ट करते हैं। रिफंड, गवर्नमेंट चाहती थी जीएसटी जब आए कि हम आपको रिफंड बहुत स्मूथली दे, इजीली दे, विदाउट एनी प्रॉब्लम, सब कुछ ऑनलाइन हो वगैरह वगैरह वगैरह। बट जैसे ही कुछ होशियार लोगों ने रिफंड के केस में भी फ्रॉड करने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने रिफंड को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया। और फिर आप में से कुछ लोगों ने वो रिस्की एक्सपोर्टर का कोई केसेस डील किए होंगे। ये रिस्की, गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि हमारा कोई कंप्लायंस डिफिकल्ट हो, but because of such wrong practices, government is forced to implement the rules, regulations, restrictions which create a problem for the honest taxpayer. So refund के केस में हुआ, उसके बाद सीरीज ऑफ एंटिटी बोगस बनाई जाती है। नंबर ऑफ 50, 30, 40, 50 सीरीज ऑफ रैकेट्स ऑफ फर्म बनाए जाते हैं और फेक आईटीसी का एक दूसरे के साथ सर्कुलर ट्रेडिंग किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आप सब लोगों को भी ध्यान में रखना जरूरी आपके क्लाइंट के लिए, कभी कभी इंटेंशन नहीं होता कि फेक इनवॉइसिंग किया जाए, बट इट इज टेकिंग द कलर ऑफ द फेक इनवॉइसिंग। कुछ एडजस्टमेंट करनी होती तो आप, आपका क्लाइंट जो होगा वो बोल देगा आपके कस्टमर को, के सप्लायर के काम को, इनवॉइस इशू कर दो, मैटर क्लोज कर दो। So that will also take the shape of the fake invoice. How? Recently, आप गूगल भी कर सकते हो बाद में सेशन में बात, ज्यादा पुराना मैटर नहीं, हमेशा शुरुआत में भी डिस्कस किया था 1 महीने पहले। एक महीने पहले इंश्योरेंस कंपनी के फेक इनवॉइसिंग में डिटेक्ट होने की न्यूज आई। लगभग 960 करोड़ का डिटेक्शन था और रिकवरी, पहली बार मैंने रिकवरी की भी अमाउंट सुनी थी इमीडिएटली, लगभग 250 से 300 करोड़ के आसपास रिकवरी थी। क्या था वो मामला? What was that issue? When I tried to study it, discuss, I come to know below कि इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे ट्रक का इंश्योरेंस निकालना है, सो मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी का आदमी बोलेगा कि आपको 50,000 प्रीमियम देना पड़ेगा सर। मैं उनको बोलता हूँ सर डिस्काउंट करो, वो बोलता है नहीं सर ये फाइनल आफ्टर डिस्काउंट प्राइस है। मैं बोलता हूँ यार कुछ तो करो, वो बोलता है कि एक काम करो सर, आप हमें एक मार्केटिंग का इनवॉइस दे दो 10,000 रुपए का, हम आपको वो उस अमाउंट का पेमेंट कर देंगे बाय बैंक। हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, हमको कुछ रूल्स रेगुलेशन है अंडर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट कि हमें कमीशन सॉरी जो भी कुछ देना है उसके रेस्ट्रिक्शंस है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आप एक काम करो, आप हमें 10,000 रुपए का बिल दे दो मार्केटिंग का। और ये मेथड, इस टाइप का प्रैक्टिस सालों से किया जा रहा था, पिछले 10-15 सालों से। सी यहाँ पे जब मैं एज अ इंश्योरेंस रिसीवर, मैं इंश्योरेंस कंपनी 10,000 का इनवॉइस दे रहा हूँ या उसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उस चेन उनको दे रहा हूँ, तो मैं मार्केटिंग की सर्विस नहीं दे रहा हूँ उनको, बट वो बोल रहे हैं कि मार्केटिंग का लिखो। इनवॉइस क्यों इश्यू किया जा रहा है? जस्ट टू क्लोज द पॉइंट्स ऑन विच, मॉनिटरी पॉइंट्स ऑन विच बोथ द पार्टीज हैव एग्रीड कि मैं आपको 50,000 रुपए का प्रीमियम दूंगा, फिर उसके बाद आपको एक इनवॉइस दूंगा 10,000 का और आप मुझे 10,000 का पेमेंट करोगे। कंपटीशन है तो ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर देने पड़ते हैं। और फिर जब ऑफिसर ने केस को देखा तो बोला ये 10,000 का इनवॉइस रेज किया जा रहा है, पेमेंट आ रहा है, क्रेडिट लिया जा रहा है, बट इसमें कुछ सप्लाई गुड सर्विस तो हो नहीं रही है, क्या मार्केटिंग किया जा रहा है? कुछ नहीं है। और ये केस हुआ एक फेक इनवॉइसिंग का, और ये लोगों ने तो 250-300 करोड़ भर भी दिए इमीडिएटली। बड़े बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व है, आप गूगल कर लेना, यू विल शॉक टू नो दिस नेम, वेरी रेप्यूटेड नेम, वेरी रेप्यूटेड कंपनीज। मेरे हिसाब से अगर ये ऐसा ही सिनेरियो जो मैंने समझा है, तो इसमें जरूरी है कि जो लोग ये कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रेस्ट्रिक्शन इन अनदर एक्ट्स, उसमें सॉल्यूशन दिया जाए। तो ये लोग करेंगे नहीं इस तरह का प्रैक्टिस। अगर इसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो
एक बहुत बड़ा अमाउंट फेक इनवॉइसिंग का खड़ा होगा। ये तो 1,000 का डिटेक्ट हुआ है। जब मैंने इसका स्टडी किया, लोगों से डिस्कस किया, वो बोले सर अमाउंट तो 20-30 हजार करोड़ का भी हो सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर भी बहुत बड़ा इंडिया का। अभी तो ये शुरुआत है। फिर रिसेंटली आई कम टू नो दिस पीपल आर अप्रोचिंग टू द गवर्नमेंट फॉर सॉल्यूशन। सो डू यू फील दिस इशू जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इट्स रियली अ फेक इनवॉइस? व्हाट डू फील? यस, प्लीज आप रिप्लाई कीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड द केस। यस, सो यहाँ पे, so the purpose of discussing the example is that whenever in day to day business practice आपको client आपका फोन करेगा, सर ऐसा ऐसा इशू हुआ है, और फिर हमारा झगड़ा हुआ कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, फिर हमने डिसाइड किया एक काम करेंगे, इनवॉइस करके क्लोज कर देंगे। डोंट डू दैट। इफ देयर इज नो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, इनवॉइस शुड नॉट बी रेज्ड। इफ इनवॉइस रेज हो रहा है तो उसका कुछ जीएसटी इम्प्लीकेशंस है नहीं है, या एडजस्टमेंट है, तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर किया जाए। Okay, so these are the normally fake invoicing modus operandi, a factor behind the fake invoicing, which I have, from my experience, I come to know. This is not new to you. Many of you are aware of all the such things. Now, अभी फेक इनवॉइसिंग में सबसे सॉरी नॉर्मली आईटीसी डिनाइल किया जाता है। कौन से केसेस में आईटीसी डिनाइल होता है? वन इज सप्लायर नॉट इन एग्जिस्टेंस। Supplier used a fake ITC for utilizing his output liability. होता क्या है कि मैंने जिससे माल लिया है उसने फेक इनवॉइसिंग का पर बिल लिया था, और उसने वो आईटीसी यूज किया है उसका लाइबिलिटी भरने के लिए, और फिर मैंने जो उससे माल लिया वो जेन्युइन था, बट आज मैं भी उसका विक्टिम हूं बिकॉज उसका आईटीसी गलत था, उसका लाइबिलिटी पेमेंट गलत था। सप्लायर ने जीएसटी 1(3)B नहीं भरा है, या उसने टैक्स नहीं भरा। ये नॉर्मल केसेस है। अभी तो ऐसे भी केसेस मैंने सुने हैं और या देखे हैं जहाँ पे मेरा कस्टमर फेक इनवॉइसिंग में था, और जस्ट बिकॉज मैंने सही में कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज दिए हैं, मेरी भी इंक्वायरी हो रही है, मेरे ऊपर भी देखा जा रहा है कि क्या मैं फेक इनवॉइसिंग के चेन में मैं भी एक मोहरा हूँ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फेक इनवॉइसिंग के केसेस को हमें कैसे हैंडल करना है फ्रॉम द ऑनेस्ट एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव। क्या क्या सबमिशन होना चाहिए, हमारा स्टडी में क्या क्या आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, every business has its peculiar issues, procedure, practices. Understand it. आप क्लाइंट का बिजनेस समझिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझिए, आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उधर मिल जाएगा। जैसे हमारे केस में ऑफिसर से कि आपने कुछ मैन्युफैक्चर किया ही नहीं है और सेल किया ही नहीं है, ये सब कुछ बोगस है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सबमिशन विच वी मेड, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का रिपोर्ट बनाया हमने, कि हमने इलेक्ट्रिसिटी अगर इतनी कंज्यूम की तो क्या वो खाई हमने? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है फैक्ट्री में, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन ही हुआ है ना। इफ यू आर डिनाइंग दिस फैक्ट देन इट इज विदाउट एनी रीजन, अदरवाइज यू प्रूव मी दैट इलेक्ट्रिसिटी को हमने बेचा है कहीं पे। अगर ये मेरे प्लांट में यूज हुई है तो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हुआ है। सो समथिंग आई हैव रियली रिसीव्ड द गुड्स, और रिसीव होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। सो व्हाइल डीलिंग विद द फेक इनवॉइसिंग केसेस, हमें पहले बिजनेस समझना है, उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रोसीजर है, ट्रेल क्या है, गुड्स के ऑर्डर देने से कस्टमर को गुड्स डिलीवर होने तक पैसे आने तक पूरी ट्रेल समझना जरूरी है। लैबोरेटरी है, इंस्पेक्शन है। इन वन ऑफ केसेस आई थिंक दैट क्लाइंट वाज हैविंग अ स्ट्रिक्ट लैबोरेटरी। उस लैबोरेटरी में आने वाला रॉ मटेरियल का एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता था, उसको टेस्ट किया जाता था। वो लैबोरेटरी का रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट एविडेंस है टू प्रूव दैट आई हैव रिसीव्ड द गुड्स। वेब्रिज की स्लिप होती है कंपनीज में, मटेरियल कितना वेट था, ट्रक आने के बाद, ट्रक जाने के बाद, दोनों टाइम का वगैरह वगैरह। ये सब डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू प्रूव दैट यू रियली हैव रिसीव्ड द गुड्स, एंड दिस इज नॉट द केस ऑफ द फेक इनवॉइसिंग।
फिर आप आपके सप्लायर का नॉर्मली आप देखती होगी, बट आप सप्लायर का थोड़ा जीएसटी कंप्लायंस को स्टडी करो। सप्लायर के जीएसटी कंप्लायंस को स्टडी करो, उसने जीएसटीआर 2A में दिखाया है नहीं दिखाया है, 3B फाइल किया है नहीं किया है, आपके लिए वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर है तो आप वो सब आपके सबमिशन में डालिए कि जितना मुझे पॉसिबल था मैंने सब ध्यान रखा है। उस आदमी ने 2B में दिखाया है, टैक्स पेमेंट किया है, अभी उसने उसका कैसे किया है मुझे मालूम नहीं है। सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी, वॉट एवर पॉसिबल आई हैव ट्राइड टू डू इट। और आप जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेट करोगे उतना आपको कुछ ना कुछ तो भी मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक केस में मैंने ऑब्जर्व किया, वो सप्लायर जो था, जो हमारे क्लाइंट के केस में डिपार्टमेंट बोल रहा था ये फेक था, इसलिए हम आपको आईटी डिनाई करें। उस सप्लायर का जब हमने स्टडी किया तो समझ में आया उसका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया था 1 साल पहले, फिर वापस उसको रिन्यू किया और उसको वापस एक्टिव किया, और एक्टिव ये बोल के किया कि ये आदमी जेन्युइन है, फिर बाद में वापस उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया बोल के फेक है। अगर आपको बीच में आदमी पहले शुरुआत में रजिस्ट्रेशन देते वक्त जेन्युइन लगा था, इसका वापस रीइन्वोक करते वक्त भी जेन्युइन लगा था, कैंसिलेशन के बाद वापस रीइन्वोक हुआ था, उसने अपील वगैरह जो भी कुछ किया होगा प्रोसीजर और उसका वापस एक्टिव किया था, तब भी आपको जेन्युइन लग रहा था, और आज वापस आपको ये फ्रॉडुलेंट लग रहा है, तो ये गलत है। ऐसे पॉइंट अगर आपके सबमिशन में आएंगे, अथॉरिटी विल नॉट टच यू, विल नॉट कम टू यू। ऐसे केसेस आपको ऑब्जर्वेशन, स्टडी, रिसर्च, डिस्कशन, प्लान विजिट के बाद ही समझ में आएगी, और ये सब आपके सबमिशन का पार्ट होगा, तो आपकी केस और स्ट्रांग हो सकती है, एंड अथॉरिटी विल नॉट जस्ट थ्रेट यू। फेक इनवॉइसिंग के अदर साइड इफेक्ट व्हिच आई हर्ड, व्हिच आई ऑब्जर्व्ड इज दैट कि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपका इंफॉर्मेशन फेक इनवॉइसिंग की ये इनकम टैक्स के साथ शेयर की जाएगी, वहां पे फिर डिसअलाउंसेस हो सकते हैं, या फिर अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी शेयर की जा सकती है कि यहाँ पे अनरिकॉर्डेड या कुछ चीजें हुई है। और जो लोग ऐसे, वन ऑफ द प्रोफेशनल, वन ऑफ माय फ्रेंड डिस्कस विद मी, वन ऑफ द केस अमाउंट वाज 5 से 10 लाख के आसपास फेक इनवॉइसिंग अमाउंट था, और वो आदमी जिसपे हरास हो रहा था उसका कोई भी गलती नहीं थी इसमें, वो जस्ट विक्टिम ऑफ दैट चेन बिकॉज उसका नाम उसमें आया था, बट ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, बट वो हरासमेंट इतना ज्यादा था कि फाइनली एक्सेप्टेड, चलो भर देते हैं, एक क्लोज कर देते मैटर को, and he accepted that amount and he paid it, but what happens after that is big problem for him. His information was shared with income tax, money laundering, and that matter now started. So ऐसे मैटर में अगर आप कुछ एक्सेप्ट करते हो तो डू इट अंडर प्रोटेस्ट। आप लिख के भेजिए कि ये मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है, बट ये मैं कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू, I just want to stop this harassment, I just want to stop this unnecessary seizure search। या आप अगर कोई स्टेटमेंट, रिट्रैक्शन ऑफ स्टेटमेंट, बहुत बार आप देखते हैं आपके क्लाइंट जाके लिख के आता है और जो सही नहीं होता है, अगर वो स्टेटमेंट सही नहीं है आप उसको रिट्रैक्ट कीजिए, यू फाइल अ फ्रेश स्टेटमेंट गिविंग अ करेक्ट फैक्ट। आई कम टू नो या आई ऑब्जर्व दैट ऐसे केसेस में नॉर्मली क्या होता है, जब रेड होती है, सर्च होता है, एक लेटर बनाया जाता है ऑफिस की तरफ से ही, वहीं पे प्रिंट निकाल जाती है, टैक्स पर उसके ऊपर साइन करता है, उसको ठीक से मालूम भी नहीं होता है कि उसने क्या साइन किया है, बट जस्ट अंडर द प्रेशर, स्ट्रेस, फोर्स, इन्फ्लुएंस ही साइन इट, उसको लगता है भैया अभी 9 बज गए, ये साइन कर दूंगा, आदमी चला जाएगा, चलो जान दो इसको। अगर ऐसा कुछ हुआ है जो गलत है तो आप उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कीजिए, आप फ्रेश सबमिशन दीजिए कि जो मैंने सबमिट किया है वो फोर्स इन्फ्लुएंस में था, और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सही है, आप कर सकते हो। सिर्फ इसमें ध्यान रखना जरूरी है, इट शुड बी फाइल्ड विद इन रीजनेबल टाइम। आप बोलोगे सर वो एक्सेप्ट नहीं करते, सेंड इट बाय द पोस्ट, सेंड इट बाय ईमेल। नाउ
There is a circular recently issued by the CBIC on this fake invoicing. अगेन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर एक व्हाट्सएप पे न्यूज चली कि फेक इनवॉइसिंग में अभी फेक इनवॉइसिंग के चेन में अगर आपका नाम आता है तो एक ही आदमी के ऊपर कार्रवाई होगी, सबके ऊपर नहीं होगी। ये व्हाट्सएप पे सब जगह न्यूज एकदम फास्टली रूमर हो गई और सबको लगने लग गया कि अभी हम इससे बच गए, एक ही आदमी के ऊपर कार्रवाई होगी, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इस सर्कुलर का गलत मीनिंग निकाला गया, इसके ऊपर गलत वीडियो बने और ये बहुत बड़ी रिलीफ है ऐसे बोल के इसको सब जगह सर्कुलेट किया गया। ये सर्कुलर इतना ही बोलता है, अगर आपका नाम फेक इनवॉइसिंग में आया है, अगर आपने गलत किया है, तो आप उस फेक इनवॉइसिंग के चेन में हो तो आपको कौन से सेक्शन के अंडर आपके ऊपर कार्रवाई होगी, सेक्शन 74 के ऊपर के अंदर होगी या फिर 122 के अंदर होगी। इतना ही सर्कुलर ने बोला है। इसके अलावा सर्कुलर बहुत ऐसे कुछ ग्रेट रिलीफ नहीं दी है। इस सर्कुलर ने जो करना चाहिए था जो नहीं किया है वो ये है कि मैंने ऑनेस्टली गुड्स परचेज किए हैं, मैंने क्रेडिट लिया है, मैंने इंश्योर किया है कि मेरा आईटीसी मेरे 2A 2B में देखे, मेरे सप्लाई में 3B फाइल किया, ये मैंने चेक किया है। और ये सब करने के बाद भी अगर आज मेरे फेक इनवॉइसिंग के ऊपर मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसका मुझे इसके ऊपर हरास किया जा रहा है, तो नहीं करना चाहिए। ऐसे सर्कुलर ने बोलना चाहिए था। आज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इसी वजह से परेशान है कि परचेस किया, सब कुछ किया, बट आज लांछन लगाए जा रहे मैंने कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ बेबोगस है, क्योंकि जो सप्लायर है उसने कुछ गलती की है, उसने कुछ गलत काम किया है, और वो नहीं मिल रहा है डिपार्टमेंट को, तो मुझे पकड़ा जा रहा है। बट यू रेफर दिस सर्कुलर टू नो अंडर विच प्रोविजंस अंडर जीएसटी एक्ट आपके ऊपर एक्शन हो सकती है। Now there are some pointers for submission in case of IT's disallowances for the honest taxpayers। जो आपके सबमिशन में आपके पॉइंटर्स along with facts research, तो जो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन होगी जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो हमने डिस्कस किया, उसके अलावा अगर कुछ आपको करना है तो क्या हो सकते हैं पॉइंट्स जो हम डिस्कस करते हैं। ये एक प्रेस रिलीज भी थी और एक काउंसिल जीएसटी काउंसिल के मिनट्स में भी लिखा गया है, दोनों में सेम चीज लिखी है। क्या लिखा गया है? Very important. This is the intention of the policy maker. What is that intention? There would not be automatic reversal of input tax credit at the recipient end. Very important thing written in the council minutes. Very important intention written in the council minute. What is it? There would not be automatic reversal of input tax credit at recipient's end when tax had not been paid by the supplier. Revenue administration shall first try to recover the tax from the seller. आपका जो भी सबमिशन होगा इसमें ये आपको पैरा डालोगे तो आपका सबमिशन और स्ट्रांग होगा। I purposefully quoted this para 18.3 of the 20th GST Council meeting dated 21st July 2018। इसमें लिखा गया है कि रेवेन्यू ने पहले सेलर से टैक्स रिकवर करने की कोशिश की जानी चाहिए। Another pointer for submission, a doctrine of impossibility, legs non cognate ad impossibilia। ये लैटिन वर्ड है, बाहुबली मूवी का जो लैंग्वेज उसके नहीं है। लेग्स नॉन कॉग्निट एड इम्पॉसिबिलिया। आई होप अभी तक हमारा जो स्पीड है और जो जा रहा हूं मैं, मेरी ऑल थिंग्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस फ्रेंड्स, प्लीज आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो श्वेता इज सेइंग यस, जुल्फिकार जी सेइंग यस, ओके, थैंक यू। सो नाउ दिस डॉक्ट्रिन, जानकी जी यस, ओके। So this doctrine of impossibilia, what the doctrine say? Law cannot compel me to do something impossible.
Law requires nothing impossible. This doctrine is referred by the Supreme Court and High Court in various its decisions. In Arise India Limited versus Commissioner of Tax, Delhi High Court judgment, where this doctrine is referred, what High Court said, purchasing dealer is being asked to do the impossible. Purchasing dealer बोला तो impossible काम कर क्या? To anticipate selling dealer who will not deposit the tax collected by him and thereby avoid the transaction with such dealer. So कोर्ट बोलता है कि ये जो इम्पॉसिबल चीजें बताई जा रही है गलत है. आप ये बोल रहे हो कि सेलिंग डीलर ने ये एंटिसिपेट करना कि उसका सप्लायर जो टैक्स नहीं भरेगा और ऐसे लोग के साथ आप बिजनेस मत करो. कैसे एंटिसिपेट करेंगे? नॉट पॉसिबल. So this doctrine you should refer. Now there are few judgments under GST, DY Bettel. Then this you will get in your this presentation will be shared with you. DY Bettel is there. I will discuss the crux of the decision and LGW Industries Limited, Kolkata High Court. Previous was Madras High Court. This LGW decision is now more powerful decision, I will say, because this decision is referred in this. You just read the last line. Sanchita Kandu versus Assistant Commissioner of State Tax. So इस LGW decision को और एक decision में refer किया गया है. And another, as per my knowledge, and if I'm correct, this decision referred to the division bench appeal. I think हुआ था कुछ तो भी, or the division bench also confirmed this decision. So this LGW decision is now a strong decision, is a reliable decision, which has now got more power. So ये सब decision में क्या बोला गया है कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा है तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है. अथॉरिटीज ने पहले जाके सप्लायर से लेना चाहिए. आज की तारीख में आदमी जिसके साथ आपने बिजनेस किया वो आदमी का रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्रेडिट डिनाई किया जाएगा. जब आपने अगर बिजनेस किया था वो रजिस्ट्रेशन एक्टिव होगा तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए. रजिस्ट्रेशन ऐसे केसेस में कैंसिल किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, बट वो आज कैंसिल होता है. जब आपने बिजनेस किया तब एक्टिव था, तो ऐसे केसेस में क्रेडिट मिलना चाहिए. The battle is still on. We are going to see the Supreme Court judgment very soon on this matter, but this will be helpful for you to prepare your submission. एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सुरेश ट्रेडिंग कंपनी केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि परचेसिंग डीलर बायर हैज अ राइट, ही इज एंटाइटल्ड to rely on the certificate of registration of selling dealer. हमें बोला जाता है कि आज उसका कैंसिल किया गया वो आदमी फेक है, नॉन एग्जिस्टेंस है. हाँ ठीक है ना, बट आज की तारीख में ना, हाउ लॉ कैन एक्सपेक्ट मी कि मैं हर रोज जाऊं और उस आदमी के शॉप के ऊपर, उसके ऑफिस के ऊपर सलाम ठोक के आऊं? नॉट पॉसिबल. हर रोज जाऊं सलाम साहब कैसे करूं मैं? नॉट पॉसिबल. फोन पे बिजनेस होता है, ऑर्डर दी जाती है, मटेरियल आ जाता है, और जब ये हो रहा था सब कुछ ठीक ठाक था. आज की तारीख में आदमी नहीं है, मैं क्या करूं? I have right to rely on this registration certificate. There is a judgment of Supreme Court which I have referred here. प्रोविजनल अटैचमेंट के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रोविजनल अटैचमेंट ऐसे करनी नहीं चाहिए, जस्ट स्मॉल केसेस में. गलत है. दिस इज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेरी रिसेंट जजमेंट, जहां पे कोर्ट ने बोला है पावर टू ऑर्डर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी is a draconian nature, and the condition which is prescribed by the statute must be fulfilled. It must be preceded by the formation of opinion by commissioner that it is necessary to do to protect the revenue. वो आदमी कहीं भाग के नहीं जा रहा है, कि देश नहीं छोड़ रहा है, कि बैंक करप्ट नहीं हो रहा है, आप उसके बैंक टैक्स किए रहे हो. ये गलत तरीका अपना जाता है. and not to defame anyone, but state authority बहुत बार अटैचमेंट की बोलते हैं हम अटैच करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते. समटाइम जेन्युइन फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक लिख दिया कि देयर वाज अ क्लियर नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द जॉइंट कमिश्नर. Commissioner duty bound to deal with such objection to attachment by passing a reason order. आपके केस में अगर ऑफिसर कोई कार्रवाई करने की भी सोच रहा होगा ना, तो आप इस जजमेंट का एक सिंपल प्लेन लेटर में हम्बल एक सबमिशन दीजिए. आई एम श्योर ऑफिसर विल 10 टाइम थिंक्स बिफोर ही इज थिंकिंग ऑफ एन बैंक अटैचमेंट. एंड बाय कोटिंग सेक्शन 83, इस केस में बंदे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया. क्यों? तो उसका नाम फेक इनवॉइसिंग में आया. कोर्ट ने बोला गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप. उसके बाद बहुत बार इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, रेड सर्च के दौरान आपकी तरफ से टैक्स रिकवरी की जाती है, वो भी गलत है. टैक्स कैन नॉट बी collected unless and until adjudication procedure section 73 or section 74 is initiated. आपके पास आए, उन्होंने बोला ये है, आप डर गए, आपने भर दिया. इस केस में कोर्ट ने रिफंड करने को बोले वो पैसे. आईटीसी ब्लॉकिंग, वी ऑल आर अवेयर, आईटीसी को ब्लॉक किया जाता है. वहां पे कंडीशन है कि मैक्सिमम ब्लॉकिंग कैन बी 1 ईयर. इस केस में जो ब्लॉकिंग था मोर देन 1 ईयर था, और डिपार्टमेंट कह रहा था कि हम कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे टैक्स पेयर से, वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, इसलिए हमने वो आईटीसी ब्लॉकिंग जो है वो कंटिन्यू रखा है. कोर्ट ने बोला कि गलत, ये नहीं कर सकते हो आप, यू कैन नॉट डू दिस. यू हैव अदर मेजर्स, गो फॉर अदर मेजर्स अंडर द एक्ट, बट the ITC blocking power is available only till 1 year. You cannot exceed the time limit. In no case, even if it is a mistake by the taxpayer. और सेम ITC ब्लॉकिंग के ऊपर और एक डिसीजन था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि we make it clear that next time we came across such cases, the concerned authority will be held personally liable. यहाँ पे भी वही हुआ था कि आईटीसी ब्लॉक किया गया था, मोर देन 1 साल हुआ था. कोर्ट ने वो ब्लॉकिंग तो हटा ही दिया बाय ऑर्डर, बट कोर्ट सेड कि अगर ऐसा वापस हुआ तो हम अथॉरिटी को पर्सनली लायबल करेंगे. ये आप ऐसा डिसीजन को आपके सबमिशन में डालोगे तो आपका डिसीजन, आपका सबमिशन स्ट्रांग होगा. नाउ व्हाट आर द सेफगार्ड फॉर द प्रोफेशनल व्हाइल डीलिंग विद द फेक इनवॉइसिंग. फ्रेंड्स, जो लोग आपके पास आते हैं और वो बोलते सर हमने कुछ किया नहीं है और हम सब कुछ हम पापी नहीं है, बी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद सच केसेस. आई सजेस्ट आप उनकी तरफ से स्टेटमेंट लिख लो कि क्या हुआ है और साइन कर लो, और उसके बेसिस पे आप कमीशन केस में आगे जाओ. कल जाके ऐसा ना हो जाए कि आपको समझ में ये आदमी ने गड़बड़ की है और फिर आपकी तरफ से कुछ सबमिशन हुआ है, अथॉरिटी को लग रहा है कि आप भी इन्वॉल्व हो और फिर आपके ऊपर भी एक्शन होने के चांसेस हो गए, आपको भी थ्रेटन हो सकता है, आपको भी थ्रेटन किया जा सकता है. सो व्हेनेवर पर्सन कम्स एंड ही इज alleging that कि इसने कुछ किया नहीं है, he is saying that he has not done anything, take from him everything in writing, whatever his statement is there for your safety purpose. Because आज के तारीख में डिपार्टमेंट आईपी एड्रेस पर से ही सब लोगों को डिटेक्ट करते हैं, और जब आप ऐसे लोगों के लिए काम करोगे और कल जाके इसमें कुछ गलत निकलेगा तो आपको भी इस प्रोसेस के हरासमेंट का प्रोसेस से जाना पड़ेगा. This is my humble suggestion to you. And if a person is really involved in the fake invoicing, please do not support him. He not just destroying the industry, but is also impacting the economy. एक बहुत बड़े पैमाने पे इसका इम्पैक्ट होता है, और इतने दिन तक ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और आगे भी शायद होगा, बट आज की तारीख में अमाउंट डिटेक्ट होती है और इसका कार्रवाई जो होती है ऑनेस्ट टैक्स पेयर के ऊपर होती है. जो अच्छा बिजनेसमैन है, जो अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, बिकॉज वो लोग इसमें मिल रहे हैं गवर्नमेंट को. सो प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ फ्लरिशिंग द फर्म्स, taking offering the registration of the fake document. Do not do this for the small amount of fees. So way forward, so day by day we are seeing the GST more stringent provisions, and some are yet to come. Section 38, more condition under section 38 are yet to be notified, so we can see more complete GST in coming days.
But again, as a professional, we are there. We need to support the government. We need to support the taxpayer. We need to find out the solution. And I see a lot of opportunity in GST. Many times people discuss कि GST में opportunity कम है, ज़्यादा है, कम होगी investment में. I see there's a huge opportunity in the GST. The important thing is that we should always keep on reading. If you keep on reading, if you are updated, there's a huge opportunity for business as a for professional also. So I concluded my discussion by saying that every big change is a hard at the first, messy in the middle, Georges at the end. So GST was hard to launch. Almost 13 years it took. It is in the messy stage, and I think this stage will continue for coming 3-4 years. But I hope our country will see a benefits of GST after 2-3 years. Sorry, after 5-10 years. So with this, I completed my session. Friends, I do circulate. I keep circulating on the updates on GST. So अगर आप भी चाहते हो तो आप जैसे इट्स 8888 का जो नंबर इसके ऊपर आप मुझे करते हो तो आई विल शेयर द GST अपडेट्स टू यू आल्सो. So thank you WRC, thank you Omkar, thank you Chairman sir for this opportunity. With this, I complete my session. Thank you. Thank you so much, Swapnil. Swapnil, before we close, I would like to ask the participant if anybody has any questions to ask you. Sir? Yes. Sir, myself Shweta Patel. Actually, I want to ask कि in my case क्या हो गया था कि fake invoicing तो नहीं है, but then उसका सारा ITC उन्होंने block कर दिया, saying that the returns are not been filed on the time. Okay, ITC is not allowed in that case. अभी मैंने refund के लिए Sorry, वापस एक बार क्या केस था मैडम आपका? सर मेरे केस में क्या हुआ है कि मेरा जो SSC है, in that case ITC has been blocked, saying that उसने timely returns नहीं भरा है and his GST has been cancelled suo motu from 2020. तो रिटर्न भरे नहीं भरे अभी तक? सर उसने मार्च 22 का नहीं भरा है अभी तक. सिर्फ मार्च 22 से अभी तक का नहीं भरा है? हाँ, rest all the returns are been filed, but उसका cancellation is from 2020 only. मैडम आप एक बार कुछ अलग रीजन है कि वो स्टडी कीजिए और रिटर्न भर दीजिए. क्लाइंट के ऑफिसर के पास जाइए. वी वांट टू फाइल द रिटर्न्स. रजिस्ट्रेशन रिन्यू के लिए बोलिए. I am saying that now I have applied for refund in that case. मतलब मेरा कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ था, तो आई हैव अप्लाइड फॉर रिफंड इन दैट केस. तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है क्या? क्या ऑफिसर इसमें होल्ड करवा सकता है क्या कुछ? आप एक बार आईटीसी ब्लॉकिंग के प्रोविजन भी पढ़िए मैडम. और Okay. आपको शायद कुछ अलग रीजन भी हो सकते हैं. नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन को अगर एक्टिवेट करना है आपको तो रिन्यू करिए. हाँ हाँ. ओके. पर कुछ ना कुछ होगा. ऑफिसर इस स्टेज पे जा रहा है तो कुछ गलत हुआ होगा. ओके ओके ठीक है सर, मैं चेक कर लेती हूँ. थैंक यू. Thank you, Shweta ma'am. Any other questions? Swapnil has already shared with us his contact details for any queries that you would want to discuss with him. We can take it offline, since I believe that the time what we had planned for, that has got over. So maybe Swapnil, if he has some other commitment, we should free him up quickly now. So on behalf of the entire study circle and WRC, I wish to really extend a heartiest thank you to CS Swapnil Munot for his time and the dedicated efforts in a very excellent presentation and a detailed explanation in a lucid manner he did. I hope all the members have been benefited by it. And of course, since the fact that you were responding also from time to time, it was more of a interactive session. Of course, virtual interaction has a limitation of its own kind, but still we had this pleasure of listening to Swapnil and sharing his thoughts and ideas. Swapnil, we would like to hear you more frequently in the times to come. Yeah, sure, Omkar. Right. So on behalf of the entire study circle, I once again thank you for the wonderful presentation and the wonderful session. With this remarks, I would like to conclude the session formally. Thank you so much, all of you. Take care. Jai Hind. Okay, thank you.